Good morning, dear students. By now, you will understand the mitotic cell division. So, let's start another type of cell division that is called meiosis cell division, and it is a very special kind of cell division. And you have also studied in your lower classes between these two types of cell division in the chapter of genetics कि माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या फ़र्क होता है. तो आई हैव अर्लियर टोल्ड यू about the mitotic cell division. So if you have remember, then it will be comfortable for you to understand the meiosis, and suppose you forget all these things, so just revisit once on the meiosis cell division so that you can recall all the things. तो बेसिक चीज़ पहले मैं आपको बताऊंगी जो मोस्टली आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि व्हाट इज़ द meiosis cell division. So meiosis cell division is a reduction division. We also call it reduction division. Why we call it reduction division? Because in meiosis cell divide twice, means दो बार divide होती है cell, but chromosome और DNA केवल एक बार ही डबल होता है. वो दो बार वो नहीं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं या डुप्लीकेशन में उसको हम नहीं डाल सकते हैं. एंड ओनली वंस ये डुप्लीकेट करता है, एंड रिजल्ट्स ऑफ विच इट गिव्स द 4 daughter cells, and the chromosome number is reduced to their parental cells. Means parental cell जितना chromosome number नहीं होता. With the help of diagram I can also show you that this is the meiosis cell division and this is the mitosis cell division. So what is the basic difference? Suppose this is the parental cell, it has 2n chromosome number. 2n means आप जानते हो 2n means होता है diploid. The concept should be clear, otherwise आपको समझ नहीं आएगा. Diploid 2n number, that means like human beings में we have the 46 chromosomes number, so this is called diploid number. Okay, now next understand what is haploid. Suppose there is a 23 pairs of chromosome, so we call the 23, it is the haploid number of chromosome and it is denoted by the n. So this is called, n is known as haploid, that means 23 chromosome, and diploid number means 46 chromosome. It is for the human beings na. So I have just written here 2n. So in the mitosis, case of mitosis, parental cell which has diploid chromosome number also produces 2 daughter cells, and these 2 daughter cells also have the same number as their parent cell. That's why we call them that mitosis. After mitosis cell division, the cell produced are the exactly carbon copy of their parents, or you can say clone of their parents. There is no difference, कोई भी genetically difference इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये exactly सेम क्रोमोसोम नंबर शेयर करती हैं जैसे इनके पेरेंट्स के पास है. बट नाउ द केस इज़ डिफरेंट इन द केस ऑफ मियोसिस. हियर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ पेरेंटल सेल ऑफ कोर्स 2n नंबर, दैट इज़ डबल डिप्लॉयड है ये. एंड जब फर्स्ट मियोसिस जो है वो 2 बार में होती है, अभी आपको मैं पढ़ाऊँगी आगे. तो दिस इज़ मियोसिस फर्स्ट. तो यू हैव सीन दैट यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स, सॉरी 2 डॉटर सेल्स जो बन गए हैं, दे आर हैप्लॉयड. एंड अगेन होता है मियोसिस 2, एंड दिस 2 cells again divided into 2 more cells, and also the chromosome number is half. So here parent cell has diploid number and these cells have the haploid number. I just remove the ink so that you can see it clearly. Now see it. This is the parent cell, diploid number, then daughter cell, haploid number, and here parent cell diploid, daughter cell also diploid. So here is a lot of difference from the mitotic cell division. So I am just giving introduction in this video so that you can take the things in correct perspective, otherwise you will be confused about the mitosis and meiosis, and mostly आपको बहुत टाइम तक ये क्लियर ही नहीं होता है कि ये सेल डिवीजन क्या है और क्यों होता है. तो नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट दिस इज़ द लाइक काइंड ऑफ डेफिनेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन एंड सेल डिवाइड्स ट्वाइस, बट क्रोमोसोम और डीएनए डुप्लीकेट्स ओनली once, and result of which one parent cell gives the 4 daughter cell, or you can say produce the 4 daughter cell having half of the chromosome number and DNA amount then the parental cell. definition हो गई जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, वही सेम चीज़ हो गई. तो नाउ लेट्स सी वेयर इट अकर्स, कहाँ ये होता है. जैसे इन केस ऑफ माइटोसिस आपने पढ़ा था, तो मैं डिफरेंस करके नहीं बता रही हूँ, हल्का हल्का बता रही हूँ आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली. तो माइटोसिस अकर्स एवरीवेयर, जहाँ भी टिश्यू बनना है, जहाँ भी ऑर्गन बनना है, कहीं चोट लग गई, कोई चीज़ पत्ती टूट गई, कुछ हो गया, तो वो सेल्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उस ऑर्गन को कंप्लीट कर देती हैं, टिश्यू को बना देती हैं. वो उनका सिंपल काम है. तो इट अकर्स इन बोथ टाइप ऑफ सेल, चाहे वो जो सी भी सेल्स हों बॉडी की, आपकी सोमैटिक हों, जर्मिनल हों. But in the case of meiosis cell division, it strictly occurs into the germinal cell. आप germ cells बोल सकते हो, you can call them sex cells बोल सकते हो,
तो आप या उनको आप जेनेटिक सेल्स भी बोल सकते हो, तो कोई भी आप सेल बोलो। तो दीज आर बेसिकली फाउंड इन द जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स कौन सी हो गई, जो गोनेड्स की सेल्स हैं हमारी, जो सेक्स ऑर्गन्स की सेल्स हैं, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज में। तो टेस्टिस में आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। एंड ओवरीज में व्हाट हैपेंस, ओवरीज में ओजेनेसिस होता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है। तो ऑन दीज टाइप्स ऑफ बोथ, अभी 12th में आप पढ़ेंगे, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। तो spermatogenesis and oogenesis both requires the meiosis kind of cell division. And in plant also आपको पता है मेल फ्लावर पार्ट क्या है, एंथर है, एंड फीमेल पार्ट जो है वो ओवरी है। तो वहाँ पर भी ये वाला सेल डिवीजन होता है। तो यू माइट थिंक दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो मियोसिस जैसे मैंने बताया आपको, माइटोसिस सिंपल होती है कि आपको ऑर्गन बनाना है, कोई टिश्यू बनाना है, कोई डैमेज हो गया बॉडी को, उसको कंप्लीट करना है, कुछ रीजनरेट करना है, तो वो काम करने के लिए हो जाता है। लेकिन जो ये मियोसिस सेल डिवीजन है, ये न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस है मियोसिस, क्योंकि जो गेमेटिक सेल्स हैं, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवा हैं, वो बाय मियोसिस ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। बिकॉज यू नो दैट ओवा इज हैप्लॉयड, sperm is haploid, and after the infusion there is zygote which is diploid and it keeps on multiplying। ठीक है, और उससे क्या बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो ये चीज़ आप 10th में पढ़ चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो आई होप आपको थोड़ी सी याद होंगी ये चीज़ें कि हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं एंड डिप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ अगर आप भूल गए तो आप एक बार दोबारा से इनको देख लेंगे। तो बेसिक एम ऑफ द मियोसिस इज़ टू प्रोड्यूस offsprings by the sexual reproduction by the fusion of male and female gametes, which are haploid sets of chromosome, that means 23 in ova, 23 in sperms, and these gametes form the diploid cell that is called zygote, जो कि कितना हो जाता है हमारा, जब आप 46 टू एन नंबर हो जाता है, देन अगेन मिटोसिस होती है, वो फिर से हो जाता है। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन जो है वो रिस्टोर करता है डिप्लॉइड डी को। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन की स्टेजेस को मैंने डिपिक्ट करने के लिए आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर बनाया है। तो आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट समथिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड, बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये यहाँ पर मैंने दिखाया है मियोसिस। ठीक है, दिस इज मियोसिस। यू कैन डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 इज द मेन you can say division by which or you can say after which the chromosome number reduced to half। लेकिन ये जो meiosis 2 है, it is exactly similar like mitosis। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं आपको, ये बिल्कुल exactly mitosis है। लेकिन मेन काम तो यहीं पर होता है, क्योंकि एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2n था तो उसका वो हाफ हो जाता है। दैट मीन्स दिस वन, इतने पोर्शन की मैं बात आपको कर रही हूँ, ये तो वैसे ही है, फिर सिंपल माइटोसिस वाली बात हो गई है ना। तो अब हर एक में बेटा वही काम होता है, दो काम जो आपको मैंने बताया, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो अगर मैंने आई हैव ऑल्सो ड्रॉ वन मोर डायग्राम, दिस वन इज़ वेयर आई यू कैन सी दिस इज़ द कैरियोकाइनेसिस, just a minute, this is the karyokinesis and this is the cytokinesis। And by now you all know that karyokinesis means division of nucleus and the cytokinesis means division of the cytoplasm। So in karyokinesis that means there is division of the chromosomes, DNA, because this is the genetic material, so division of chromosome is important। So again PMAT, you remember that thing, I have told you this PMAT, what is this, prophase, metaphase, anaphase, telophase, these are the various phases of the cell division ना। तो like that यहाँ पर again आप देखेंगे तो this is the prophase, this is metaphase, anaphase and telophase। I have written all the 4 phases of the karyokinesis। ठीक है, and after then come to the prophase। prophase is also very long duration। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। आप 5 सब फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। एंड व्हाट हैपन इन दीज सब स्टेजेस, ओनली द वेरिएशन यू कैन सी इन द शेप साइज ऑफ द क्रोमोसोम्स, और कुछ ऐसी नई बात नहीं होती। क्रोमोसोम्स के अंदर ही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते होते हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो दिस इज़ सो लॉन्ग, आप देखो कि 5 आपको सब फेजेस बनानी पड़ी इसके लिए। देन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इज़ द नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। So now move to the same diagram but little bit variation I have done in this diagram so that you can understand it
more precisely. So meiosis is divided into two parts, meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, again we have the phases like I told you earlier, prophase, metaphase, anaphase, telophase. सेम थिंग मैं वही चीज़ बता रही हूँ बट इन डिफरेंट पैटर्न में आपको बता रही हूँ. देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, बिकॉज दिस इज कंप्लीट, ऑल फेजेस आर कंप्लीट इन मियोसिस 1. तो दिस इज साइटोकाइनेसिस. हियर आई हैव शोन द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज, जो भी आपको मैंने पीछे बताई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सारी प्रोफेज की हैं. बट बेसिकली यू हैव प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस 1. और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ रिड्यूस हो जाता है आपका. उसके बाद में नेक्स्ट आती है साइटोकाइनेसिस के बाद में अगेन मियोसिस 2. इंटरफेस भी इसमें होती है, जैसे पहले आपने पढ़ी थी, तो उसमें भी सारे काम वैसे ही होते हैं. देन अगेन मियोसिस 2 जब होगी तो ये एग्जैक्टली वैसी होगी जैसे माइटोसिस होती है. एंड ऑल द फेजेस आर also present like prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Then again cytokinesis, and cell will be divided into 4 cell. So you have seen that in the mitosis you get 2 daughter cells from the one parental cell, and whereas in the meiosis you get 4 daughter cell from the one parental cell. And the number of the or you can say haploidy, or you can say number of the chromosome in each cell is haploid number of chromosome. Like suppose it is 46, तो it will be 23 23 23, क्योंकि इससे क्या बनेंगे, ये सपोज ये स्पर्म बनना है तो ये स्पर्म बन रहे हैं, है ना, ओवा बनना है तो इनसे ओवा बनेगा. तो इसलिए जो मियोसिस है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एंड आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर लूँगी उसमें मैं कुछ आपको और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं डिटेल्ड में आपको वो मैं समझाऊंगी. तो टिल देन कीप रिवाइजिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन एंड रीड द चैप्टर फ्रॉम द NCERT बुक. थैंक यू.